Video number 2.12. Now some common terms which students generally ask me again and again, so I am explaining it, and these will be coming when you are solving account sums. These terms will be coming in questions, so you should need to know what exactly it is. So the first one is closing stock. Now generally we all know that accounting year is from 1st April to 31st March. See, the calendar year starts on 1st January and ends on 31st December, but the accounting year starts from 1st April. If it is 2019, so it will be 1st April 2019 and ending up at 31st March 2020. So what is the closing stock? The closing stock is the stock which is lying unsold as on 31st March 2020 with the business firm. Okay, so closing stock is the stock on the last day of the accounting period which will be sold in the coming year or the next year. Next point is, why is purchase debit and sales credit? See, only I told you that you have to remember only 5 things, that is capital, assets, liabilities, expenses and income. So why is purchase debit? First, you should understand that capital, whenever invested in business, is always credit. Then drawing is always debit. Then assets, whenever they come in business, they have always to be debited. Then liabilities, whenever they arise, they are always credit. Expenses, whenever they arise, always debit. And income, whenever income is due or received, it is always credit. So purchase being an expense, and expense are always debit, so purchase is always debit, remember it. And sales is the main source of your income, so sales is generating income is always credit, so sales is always credit. Now point number 3, purchase return. Now what is purchase return? See, say you bought goods of 3000 and you did not like 1000 का goods, maybe wrong color आ गया और maybe wrong design description, कुछ भी wrong है, so you will return those goods. So purchase return, and you have to also remember the other name of purchase return, which is return outward, is always credit. And it makes sense also, right? परचेज एक्सपेंस है, डेबिट हो रहा है, एंड परचेज रिटर्न इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ परचेज. दैट इज कोई गुड्स परचेज के कारण अंदर आया और अब परचेज रिटर्न के कारण बाहर जा रहा है, तो परचेज डेबिट है, तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को क्रेडिट ही होना पड़ेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सेल्स रिटर्न. सेल्स रिटर्न क्या है? सी, सेल्स रिटर्न इज you sold the goods to an outside party and they have returned it back to you. That is sales return. Okay, sales return का दूसरा नाम क्या है? Return inward. So it makes sense कि जब ये sales हमेशा credit होता है तो sales return हमेशा debit ही होगा, because it is just opposite of sales. That is, you sold some goods and it came back to you. When sales is credit, sales return, the other name of sales return, return inward, is always debit. Point number 5, trade creditors. See, trade creditors, then trade payable, bills payable. ये होता क्या है पहले वो प्लीज समझो अभी. ट्रेड क्रेडिटर्स क्या है? यू हैव परचेज फ्रॉम समवन, दैट इज यू मीन्स योर बिजनेस हैज परचेज गुड्स फ्रॉम समवन, एंड गुड्स आ चुके हैं आपके बिजनेस में, बट यू नीड टू पे देम लेटर. तो दिमाग जब भी कहेगा मुझे इसको देना है, क्यों देना है? क्योंकि मैंने आज इससे गुड्स परचेज किए और मेरा पेमेंट इससे बाकी है. सो दैट इज ट्रेड पेएबल या क्रेडिटर्स या बिल्स पेएबल, जो भी नाम है उसका, सिंस यू हैव टू पे देम, इसलिए ये लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट होगा. नाउ 6th पॉइंट, ट्रेड डेटर्स और डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल या बिल्स रिसीवेबल, वॉट एवर इट इज. ओके, सो ये कैसे अराइज हुआ? यू हैव सोल्ड गुड्स टू समवन, गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा चुके हैं बिकॉज यू हैव सोल्ड, बट द अदर पार्टी हैज स्टिल नॉट पेड यू. आपको पैसा अभी मिला नहीं है,
तो बाद में वो पार्टी आपको पैसा देगी. सो द पार्टी हु इज सपोज टू गिव यू मनी बिकॉज दे हैव बॉट गुड्स फ्रॉम यू ऑन क्रेडिट, दैट इज आपका तो क्रेडिट सेल्स हुआ और उनका क्रेडिट परचेज हुआ. उन्होंने आपसे सामान उधार में खरीदा है, आपने उधार में बेचा है. सो आपको उनसे पैसा लेना बाकी है. नाउ द वर्ड विच योर माइंड सेज इज मुझे लेना बाकी है. ओके, जब लेना बाकी है तो वो एसर्ट होगा. एसर्ट इज गुड फॉर योर बिजनेस एंड एसर्ट्स ऑलवेज डेबिट होता है, इसलिए वो डेबिट होगा. नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 7, फ्री होल्ड बिल्डिंग. अच्छा, स्टूडेंट आस्क मी फ्री होल्ड बिल्डिंग में क्या फ़र्क है. सी फॉर यू वेदर इट इज़ फ्री होल्ड बिल्डिंग, वेदर इट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग, वेदर इट इज़ प्रीमाइसेस, वो सब एसर्ट ही है. आप अपना बिजनेस रन कहाँ करोगे. यू नीड अ बिल्डिंग, यू नीड अ फ्लैट, यू नीड अ प्रीमाइसेस, यू नीड अ ऑफिस टू रन योर बिजनेस. सो वट एवर इट इज़ एन एसर्ट और उसको आप डेबिट ही करोगे बिकॉज एसर्ट्स को डेबिट किया जाता है. बेसिकली यू हैव टू रिमेंबर फिक्स एसर्ट्स में क्या क्या आता है जनरली. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर एंड प्रिंटर एंड मोटर व्हीकल्स, ये सब एसर्ट होते हैं, फिक्स एसर्ट्स होते हैं और आप इनको डेबिट करते हो. नाउ पॉइंट नंबर 8, unpaid wages, also called as outstanding wages, also called as accrued wages, also called as wages due but not paid. मतलब कोई वर्कर या कोई एम्प्लॉय या कोई मैनेजर आपके बिजनेस के लिए काम कर रहा है, उसका काम करके मंथ फिनिश हो चुका है, उसने काम कर दिया है पर आपने अभी तक उसको पैसा नहीं दिया है. सो दैट इज अनपेड वेजेस और आउटस्टैंडिंग वेजेस और अक्रूड वेजेस, वेजेस ड्यू बट नॉट पेड. आपने पे नहीं किया दैट डजंट मीन वो आपका एक्सपेंस नहीं है. आपका एक्सपेंस तो अराइज हो चुका है लेकिन आपने अभी तक पे नहीं किया है. सो expenses, whatever expenses due but not paid, it can be salary, it can be advertisement expenses, it can be rent, whatever it is, expenses due but not paid आपकी, that is आपके business की liability है और since it is liability वो हमेशा credit होगा. Now we'll go to point number 9. Point number 9, prepaid wages or also called as wages paid in advance, or it is also called as, see, anything expenses paid in advance or prepaid expenses. So what is this? आपका एक्सपेंस अभी तक ड्यू ही नहीं हुआ है एंड यू हैव पेड इट इन एडवांस. आपने अपने एक्सपेंसेस ड्यू होने से पहले ही पे कर दिया. अच्छी बात है ना, ड्यू होने से पहले ही पे कर दिया. सो एनी प्रीपेड एक्सपेंस is your assert and because it is an assert वो हमेशा debit होगा. Now the last point, and before the last point I want to say you should remember all the names. जैसे unpaid expense है उसको outstanding expense बोलते हैं, उसको accrued expense बोलते हैं, उसको expenses due but not paid बोलते हैं. वो liability होता है और इसलिए credit होता है, you should know that. Then prepaid expense है और expenses paid in advance है और एक्सपेंसेस पेड बिफोर ड्यू डेट कुछ भी है तो वो एसर्ट होगा और एसर्ट है इसलिए डेबिट होगा. यू शुड नो दैट. नाउ लास्ट पॉइंट नंबर 10, सस्पेंस अकाउंट, अ टेम्पररी अकाउंट इन विच amount is put before allocation of correct account. It carries doubtful entries causing discrepancy. See, basically the rule is मेरा जितना भी डेबिट साइड में अमाउंट है दैट शुड बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड ऑफ अमाउंट. हमेशा वो टैली होना चाहिए. बट हो सकता है, सी अकाउंटेंट है, भगवान नहीं है, मिस्टेक हो सकती है. तो उसको एक साइड की एंट्री मिली, सिर्फ डेबिट की मिली लेकिन क्रेडिट की नहीं मिली और टाइमली उसको बुक्स तो क्लोज करना है. सो टेम्पररीली क्योंकि उसको क्रेडिट साइड का एंट्री मिल नहीं रहा है तो मे बी उसने सस्पेंस में डाल दिया. अभी एक टेम्पररी सस्पेंस अकाउंट करके अकाउंट ओपन किया है. जब वो एंट्री उसको ट्रेस हो जाएगी तब सस्पेंस से हटाकर वो उसको करेक्ट अकाउंट में डाल देगा. सो इट कैन हैपन फॉर डेबिट साइड ऑल्सो कि डेबिट में भी सस्पेंस अकाउंट आ जाए. इट कैन हैपन फॉर क्रेडिट साइड ऑल्सो. टेम्पररी इफ यू आर नॉट एबल टू लोकेट कि ये किस कंसर्निंग एंट्री के लिए है. सो टेम्पररी यू पुट अ सस्पेंस अकाउंट and the doubtful entries are put in suspense account which are causing discrepancy so that your debit and total credit total matches. And when
अल्टीमेटली यू फाइंड दैट कि ये इस चीज से रिलेटेड था, यू रिमूव दैट सस्पेंस अकाउंट एंड यू पुट द करेक्ट नेम ऑफ अकाउंट देयर. सो सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, ठीक है. एंड बिफोर यू कैन फाइंड द डाउटफुल एंट्री कि वो क्या था, उसको एक बार सस्पेंस में हम डाल देते हैं एंड लेटर वी कैन करेक्ट इट.